سعودی ولی عہد کا تاریخی دورہ پاکستان کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ شاہی مہمانوں کے شایان شان استقبال کے لیے قالین والی سیڑھی بھی نور خان ایئر بیس پہنچا دی گئی۔ سعودیہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری پیٹرولیم اور توانائی میں کرے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں عرب لوگ یورپ کے بجائے پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے آئیں۔ سعودی ٹی وی چینل کو انٹرویو۔ واقعہ افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ہم جانی نقصان کے کبھی حق پہ نہیں ہیں، ہم وائلنس کے کبھی حق پہ نہیں ہیں۔ کل تھے نہ آج ہے۔ اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کرے اور ہمارے ساتھ تعاون ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت اپنا رویہ بدلے، بغیر ثبوت الزامات نہ لگائے، ثبوت ہیں تو شیئر کرے۔ پاکستان پلوامہ حملے کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بولے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھانے کی پالیسی ترک کرے۔ مودی کے دورہ کشمیر کے دوران ہوا فوجی قافلے پر حملے میں بھارتی ساختہ مواد استعمال ہونے کا بھی انکشاف۔ نواز شریف جناح اسپتال لاہور میں زیر علاج، بیٹی مریم نواز اور بھائی شہباز شریف عیادت کے لیے پہنچے۔ دونوں بھائیوں میں سیاسی معاملات پر بھی مشاورت۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف کا بہتر علاج ہونا چاہیے۔ مریم نواز کا والد کو PIC منتقل نہ کرنے کا شکوہ، کہا ظلم کی رات نے جلد ختم ہونا ہی ہے۔ پروفیسر عارف تجمل کا کہنا ہے کہ نواز شریف تمام سہولیات سے مطمئن ہیں۔ خواجہ برادران کی جوڈیشل ریمانڈ میں 4 مارچ تک توسیع۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کی احتساب عدالت لاہور میں پیشی۔ لیگی احمد نے نیب کی جانب سے پرانی گاڑی میں عدالت لانے کا شکوہ کرتے رہے۔ فواد چودھری کو جیل میں ساتھ رہنے کا چیلنج کر دیا۔ اور جو 5 اسٹار جیل کے تھا فواد چودھری، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ آئے اس سیل میں جس میں ہر وقت منہ پہ چنا گرتا ہے، اور جو 90 سال پرانی پریزن اسے بھی شرم آنی چاہیے۔ نیب کا ایک اور بڑا اقدام، وزیر دفاع پرویز خٹک، اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی، سابق چیف سیکرٹری امجد علی خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی، جلد طلب کیے جانے کا امکان۔ تینوں پر ہری پور میں پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی غیر قانونی تعیناتی کا الزام ہے۔ لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کی جانب سے تقریب، مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی تھے۔ کہتے ہیں پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کے بھارتی الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو دہشت گردی سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملالہ یوسفزئی سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ معروف برطانوی لا فرم میٹن برنات نے لندن میں نئی برانچ کھول لی۔ افتتاحی تقریب میں بیرسٹرز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نئی برانچ کے اضافے سے پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی، شرکاء کا اظہار خیال۔ برمنگھم کے کوئین ایلزابتھ اسپتال میں انتقال کرنے والے پاکستانی شہری نصر اللہ کی نماز جنازہ عالم راک ضیاء القرآن مسجد میں ادا۔ پاکستانی کونسل جنرل اور کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرحوم کا جسد خاکی آج پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی اسپین کے شہر بارسلونا آمد۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی اور کشمیری رہنماؤں کا استقبال۔ بارسلونا میں پاکستانی قونصلیٹ آفس کا دورہ، کونسل جنرل سے ملاقات۔ آج بارسلونا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کریں گے۔
برطانیہ میں مقیم پاکستانی بھارتی رویے سے ناخوش، فوجیوں کی ہلاکت کا ملبہ پاکستانیوں پر ڈالنے کی کوشش کو بددیانتی قرار دے دیا۔ کہا بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزامات تراشی کرتا ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری کے باوجود پاکستان نے بھارت کو امن کا پیغام دیا۔ والسال کی عائشہ مسجد میں ICARE کے اسلامک مشن کے زیر اہتمام شدید سردی سے بچنے کے لیے بے گھر افراد میں حفاظتی سامان اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ کونسلر آف والسال مارک اولونگی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صحرائے چولستان میں 14ویں جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ، ڈرائیورز کی تیز رفتاری اور مہارت کا مظاہرہ۔ سٹاک کیٹیگری میں 69 گاڑیاں 240 کلومیٹر ٹریک پر رواں دواں، 3 خواتین ڈرائیورز بھی شریک۔ تشنا پٹیل اپنے اعزاز کا دفاع کریں گی۔ دیر بالا میں انتظامیہ کی بے حسی، برفباری کے بعد سیاحتی مقام شرومائی روڈ 38 روز سے بند، حکام نے کچھ نہ کیا۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے پر مجبور۔ ادھر نیلم آزاد کشمیر کی گریس ویلی میں سہولیات کی کمی کے خلاف شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ گریس ویلی میں برفباری کے بعد 1.5 ماہ سے روڈ بلاک۔ چلی کے جنوبی جنگلات میں بھڑکنے والی آگ تاحال بے قابو، 96,371 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ شعلوں کی زد میں آ کر فائر فائٹر سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مونالیزا بن گئی سنونالیزا، کینیڈین آرٹسٹ کا کمال، جمے ہوئے سوئمنگ پول پر مشہور زمانہ پورٹریٹ بنا دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز UK کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ میں ہوں حمزہ طارق۔ آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں سعودی شہزادے کی پاکستان آمد پر۔ شہزادے کی پاکستان آمد، پوری قوم شاہی مہمان کے استقبال کے لیے پرجوش ہے۔ حکومت بھی شہزادے کی راہوں میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے۔ شہر اقتدار کی شاہراہوں پر شہزادے کی تصاویر اور خیر مقدمی بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ سرخ قالین والی سیڑھی نور خان ایئر بیس پر پہنچا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کابینہ کے ارکان کے ہمراہ استقبال کریں گے۔ پاکستانی حدود میں فائٹر جیٹ شہزادے کے طیاروں کو پروٹوکول حصار ملیں گے۔ نور خان ایئر بیس پر شہزادے کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور عوام سعودی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے دل و جان سے تیار ہے۔ حکومت نے شہزادے کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی شہزادے پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام معزز مہمان کے استقبال اور انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے دل و جان سے تیار ہے۔ حکومت نے شہزادے کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے استقبال کے لیے اسلام آباد کی اہم شاہراہیں سجا دی گئی ہیں۔ سرخ قالین والی سیڑھی نور خان ایئر بیس پر پہنچا دی گئی۔ سرخ قالین سے مزین سیڑھی شاہی مہمانوں کے لیے استعمال ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کابینہ کے اراکین کے ہمراہ استقبال کریں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے فائٹر جیٹ شہزادے کے طیارے کو پروٹوکول حصار ملیں گے۔ لینڈ کرنے پر شہزادے کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔
وزراء بھی شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پرجوش ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ شاہ فیصل مسجد دونوں ممالک کے مضبوط رشتوں کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی ولی عہد کے ویژن کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران اربوں ڈالرز کے معاہدے ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ سرمایہ کاری پیٹرولیم اور توانائی میں ہوگی۔ پیٹرولیم اور توانائی کے شعبوں میں کم از کم 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سرمایہ کاری کی شرائط شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کی ٹیمز آپس میں طے کریں گی۔ زراعت میں بھی سرمایہ کاری کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستانی آرٹسٹ کا سعودی عرب کے ولی عہد کے لیے تحفہ۔ آرٹسٹ رابعہ ذاکر نے سعودی ولی عہد کا ہاتھ سے پورٹریٹ تیار کر لیا۔ ولی عہد کو پیش کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے عمر جٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ میری خواہش ہے کہ یہ ولی عہد کو میں پریزنٹ کروں۔ سعودی ولی عہد کا تاریخی دورہ پاکستان، پاکستانیوں کی جانب سے منفرد انداز میں محبت کا اظہار۔ پاکستانی نوجوان آرٹسٹ بھی میدان میں آ گئیں۔ رابعہ ذاکر نے سعودی ولی عہد کا پورٹریٹ تیار کر لیا۔ آئل پینٹنگ تصویر مکمل کرنے میں آرٹسٹ کو 1 ہفتہ محنت کرنا پڑی۔ روایتی عرب لباس رومال کو بھی آئل پینٹنگ سے حقیقی رنگ دیے گئے۔ رابعہ ذاکر کہتی ہیں کہ ولی عہد کے چہرے کے جلالی اور جمالی تاثرات بنانا مشکل کام تھا۔ اس پورٹریٹ میں خاص طور پہ جو جلال اور جمال اس کو برقرار رکھنا کافی مشکل تھا، جس کو میں نے رنگوں کی مدد سے کافی خوبصورت طریقے سے پینٹ کرنے کی کوشش کی۔ آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سعودی ولی عہد کو تحفہ پیش نہ کر سکی تو سعودی سفارت خانے کے سپرد کر دوں گی۔ عمر جٹ 92 نیوز اسلام آباد۔ سعودی ولی عہد کے دورے پر سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دورے سے پاک سعودی تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم ولی عہد سعودی عربیہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس دورے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک تو پہلے ہی بہت اچھی دوستی ہے، یہ دوستی اور مضبوط ہوگی اور تعلقات میں اور بہتری آئے گی، اس سے پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پاکستانی عوام کی طرف سے سعودی حکومت اور سعودی عوام کا شکر گزار ہوں جو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاک سعودی تعلقات کو ایک نئی سمت ملنے جا رہی ہے جس میں مزید تعلقات کا اثر پوری امت مسلمہ پہ پڑے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان، اس حوالے سے میں بہت خوش ہوں اور یہاں مقیم جو پاکستانی ہیں وہ بھی انتہائی خوش ہیں اور اسی طرح پہلی دفعہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی میڈیا میں اس دورے کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے اور اس دورے کو خاصی کوریج مل رہی ہے، اس لیے بھی کہ یہ پہلا دورہ ہے ولی عہد کا محمد بن سلمان کا ولی عہد بننے کے بعد۔ اور اس دورے کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ سعودی عرب پہلی دفعہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اور اس دورے سے پہلے کابینہ کا یہاں اجلاس ہوا تھا جس میں جو بادشاہ ہیں یہاں پہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے فری ہینڈ دیا اپنے وزراء کو، اپنے کابینہ کو کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے۔ ماشاءاللہ سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ولی عہد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ تاریخی دورہ ہے جس پر نہ صرف سعودی عرب بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، بالخصوص یہاں جو عرب میڈیا ہے وہ سعودی میڈیا جو ہے وہ اس پر زیادہ بات کر رہا ہے اور یہاں کے تمام اخبارات میں، یہاں کے تمام ٹی وی چینلز میں اس پر بات ہو رہی ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی ولی عہد پاکستان جا رہے ہیں۔ پاک سعودیہ تعلقات کے حوالے سے ہمیں پچھلے 12 سالوں میں جو سرد مہری نظر آئی ہے اب اس کے اندر بہت زیادہ تیزی ہو گئی ہے اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ حالیہ سعودی ولی عہد
पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौरों का सिलसिला शुरू किया है और उसमें सबसे पहला पड़ाव है वो पाकिस्तान में डाल रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ के जो हमारे सऊदी दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें तो अमेरिका के यहाँ से जाने के बाद इस खित्ते में पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल पैदा हो रहा है और पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत मुल्क देखा जा रहा है। और इस दौर के अंदर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जुड़ना ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए दौरे के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि हमारे मज़दूरों के लिए मसाइल हल किए जाएं। हम 30 लाख पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम दिल की अथाह गहराइयों से वलीयत को खुश आमदीद कहते हैं और हम ये समझते हैं कि इस दौरे से नए तल्लुकात जो हैं उनकी बुनियाद रखी जाएगी। सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले जो फैमिली विज़िट वीज़ा फ़ीस माफ़ की है उसको भी हम बहुत खुशाइन करार देते हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, बिजनेस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स और इसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबेन दो तरफ़ा तजारती मुआहदे होने जा रहे हैं, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जिसके इंतहाई दूररस नताइज मुरतब होंगे और पाक सऊदी ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती फराहम करेंगे। जिस तरह के पाकिस्तान और सऊदीया के हालात, ताल्लुकात आपस में अजली हैं, मोहब्बत का रिश्ता, एक बरादराना जो तल्लक है वो किसी भी दौर, किसी भी गवर्नमेंट का मुहताज नहीं होता। वो हर दम, हर वक्त एक बहुत अजली तल्लक है हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरब का। तो हम इसको बड़ा पॉजिटिवली समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा जो ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात में बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। सऊदी वली अहद की आमद के हवाले से तैयारियों के बारे में आपने जाना। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। डॉक्टर अब्दुल समद को 18 फरवरी को नैब हेडक्वार्टर्स में पेश करने की हिदायत की है। कहते हैं डॉक्टर अब्दुल समद पर लगाए गए इल्जामात की तफसीलात खुद सुनूंगा। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी और पेशावर म्यूजियम की कौमी खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान के बाद चेयरमैन नैब भी मैदान में आ गए। डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को मुलजिम को 18 फरवरी को हर सूरत में नैब हेडक्वार्टर में पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन की जानिब से मुतल्लिका रिकॉर्ड और इन पर लगाए गए मुबैना इल्जामात की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म। वाज़ेह किया कि डॉक्टर अब्दुल समद पर लगाए गए मुबैना इल्जामात की तफसीलात खुद सुनूंगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर आर्कियोलॉजी और म्यूजियम की कौमी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं और आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी पर जहाँ एक तरफ वजीर आजम इमरान खान ने नाराजगी का इजहार किया, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान ने भी गिरफ्तारी को नाजायज करार दिया। और अभी बात करेंगे पुलवामा के ड्रामा की। तो भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया, फिर मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान ने इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने भारत को खरी खरी सुना दी। शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक पैगाम दिया कि भारत अपना रवैया बदले, बगैर सबूत इल्जामात ना लगाए। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने की पॉलिसी को तर्क करे। सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ की भी अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात और कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए हैं। खरी सुना दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत अपना रवैया बदले, बगैर सबूत इल्जामात न लगाए। अगर हिंदुस्तान के पास सबूत हैं तो हमसे शेयर करें और हमारे साथ तावन हम देने के लिए तैयार हैं। इल्जाम तराशियों से न पहले कुछ उन्हें हासिल हुआ है न आइंदा होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने की पॉलिसी तर्क करे। अफसोसनाक वाक़या है, हमने इस वाक़े की मजम्मत की है। हम जानी नुकसान के कभी हक में नहीं है, हम वायलेंस के कभी हक में नहीं है, कल थे ना आज है। दूसरी जानिब अमरीकी नाज़िमुल अमूर की सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पुलवामा हमले पर तबादला ख्याल किया गया। तहमीना जंजुआ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को ब्रीफिंग भी दी गई।
पुलवामा हमले के बाद भारत के मनफी प्रोपेगेंडे पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके इल्जाम तराशी पर शदीद एहतजाज और मरासला दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भारतीय रवैये से नाखुश, फौजियों की हलाकत का मलबा पाकिस्तानियों पर डालने की कोशिश को बददियानती करार दे दिया। लंदन में मकीन पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। आप भी देखिए। हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, बिल्कुल गलत करता है। इंडिया कितनी पाकिस्तान में जासूस पकड़ा गया है, कुलभूषण, उसके इतने सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान ने उसके साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है। मैं तो यही कहूँगा, जो कश्मीर में जंग जारी है वो कश्मीरी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, और ये जो फौजी हलाक हुए हैं ये पाकिस्तान को जानबूझकर इन्वॉल्व किया जा रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ सफारती सतह पे जो है ना वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मकबूजा कश्मीर पुलवामा में इंडियन फौजी काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले का इल्ज़ाम बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पर लगाने के हवाले से ओवरसीज़ कश्मीरियों ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू के दौरान अपने रद्द-ए-अमल देते हुए इंडियन हुक्मरानों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। जिस तरह का इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से हमेशा इल्ज़ाम की सियासत की जाती है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है इंतहाई गलत इल्ज़ाम है, और इस इल्ज़ाम की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कश्मीर के मकामी लोग हैं, जब मकामी लोगों को अप्रेस करने की कोशिश करोगे उन्होंने किसी न किसी तरह से वापस ज़रूर आना है। और ये हो सकता है कि इंडिया की एजेंसी जिस तरह से पंडितों के साथ जो कुछ किया गया इंडियन एजेंसीज ने मिलकर किया है, अब मुझे समझ नहीं आती कि 8 लाख फौज मौजूद है, हर 20 बंदे पे एक मिलिट्री वाला पहरे देने वाला मौजूद है। अगर इसके बावजूद वो नज़र नहीं रख पा रहे तो या तो इसका मतलब है वो शामिल हैं या बिकाऊ हैं। तो या reject any insinuation by elements in the Indian government and media circles that seeks to link the attack to the state of Pakistan without any investigation. पुलवामा इंसिडेंट के बाद भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के खिलाफ बयान, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और भारत को बता देना चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम वो पुराना हो चुका है। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि भारतीय फौजियों पर हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हमायत के भारतीय इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। India has over 600,000 troops in Kashmir. We have about 200,000 troops in the same area. So it's a real flashpoint for the two militaries. We have always condemned these events, but the situation in Kashmir, the Union of Kashmir, is an organic situation. शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम बंद कराने में किरदार अदा करे। उनका कहना था कि भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद को दहशतगर्दी से मंसूब करने की कोशिश कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में पूरी दुनिया दहशतगर्दी को शिकस्त देने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने तन्हा अपनी सरजमीन पर ये जंग जीती। यहाँ दहशतगर्द तंजीमों का कोई वजूद नहीं रहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में कहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए मजबूत जमहूरियत जरूरी है। तमाम इदारों को अपने दायराकार में रहना चाहिए। तकरीब में तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई, जिनमें वहाँ ज़ेरे तालीम नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई भी शामिल थीं। मशहूर लॉ फर्म एडम बर्नार्ड ने लंदन के मारूफ इलाके एजवे रोड पर नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। फर्म के सीईओ बैरिस्टर राशिद असलम ने पार्टनर सॉलिसिटर के साथ मिलकर रिबन काटा। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। मारूफ लॉ फर्म एडम बर्नार्ड ने लंदन के मशहूर इलाके एजवी रोड पर अपनी नई ब्रांच खोल ली। इफ्तिताही तकरीब में बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
فرم کے CEO بیرسٹر راشد اسلم نے پارٹنر سولیسٹرز کے ساتھ مل کر ربن کاٹا۔ بیرسٹر راشد اسلم نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی فرم کی نئی برانچ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں پہ ایشین یا کسی بھی قسم کا کوئی شخص اس وجہ سے تصور نہیں کرتا کہ سب سے مہنگا روڈ ہے، پوری دنیا میں فیمس ہے، لیکن یہاں پہ اوبیسلی لیگل مسائل تو لوگوں کے تھے۔ یہاں سے کچھ کلائنٹس تھے جو ٹریول کر کے آل دی وے ہمارے دوسرے آفس جاتے تھے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ آفس کھولا جائے تاکہ لوکلی لوگوں کو ملا جائے۔ ایچ وے روڈ پہ ہمارے بہت سارے سیاستدان، وزراء اعظم صدور بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اس کے علاوہ مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، تو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ ایجم برناچ قانونی مسائل کے حل میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ نئی برانچ کے اضافے سے جہاں پاکستانی لوگوں کے مسائل کے حل میں مدد ہوگی تو وہیں عرب شہریوں کو بھی قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ کیا آپ کا امیگریشن، کیا آپ کا یعنی خاندانی فیملی لا، کیا آپ کی سول لیٹیگیشن، کیا کمرشل لا، کیا کنوینسنگ وغیرہ وغیرہ، یہ دفتر شاید پہلے بن جاتا اگر ہوبورن میں جو ہے دفتر انہوں نے قائم کیا تھا وہ پہلے نہ بنا ہوتا۔ بہرحال یہ جگہ جو ہے ہر حوالے سے مناسب ہے۔ ایریا لندن میں چونکہ کمیونٹی ہماری بہت زیادہ ہے، اس کے لیے آنیسٹ اور انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائس کی کافی فقدان ہے۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایسا فورم پرووائڈ کریں جو ان کو آنیسٹ اور امپارشل اوپینین دے سکے اور ان کی گائیڈنس کر سکے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پہلے پاکستانی لا فرم ہیں جو یہاں پہ کھولے ہیں ایچ وے روڈ پہ، تو it's a great pleasure to have us here. We're very proud to be celebrating the opening of our new Edgware Road branch today, and we hope that we can be of assistance to a diverse community here as well as our branch which is existing in Upton Park. شہریوں نے لندن کے اہم ترین علاقے میں پہلی پاکستانی فرم کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہسپتال میں انتقال کرنے والے پاکستانی شہری نصر اللہ کی نماز جنازہ عالم روک ضیاء القرآن مسجد میں ادا کی گئی، جس میں پاکستانی کونسل جنرل اور کمیونٹی رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مرحوم کا جسد خاکی پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد قاسمی۔ برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں عارضۂ قلب میں مبتلا پاکستانی نصر اللہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج عالم روک ضیاء القرآن مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کونسل جنرل آف پاکستان کے علاوہ کثیر تعداد میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم نصر اللہ کے دونوں بچے بھی موجود تھے۔ شرکاء نے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھ کر اظہار تعزیت کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ مرحوم کے بھی بچوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے والے ضیاء القرآن مسجد میں کل تک رہیں گے، جبکہ بروز ہفتہ نصر اللہ کا جسد خاکی پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ مرحوم نصر اللہ نے کچھ ہفتے پہلے اپنی فیملی سے ملنے کی آخری خواہش کا اظہار کیا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مرحوم نصر اللہ کی ویڈیو دیکھ کر DGISPR اور پاکستانی کونسلیٹ نے فوری اقدامات کیے اور اس کے بیوی بچوں کو پاکستان سے برمنگھم پہنچایا گیا۔ ہاسپٹل میں نصر اللہ کے بیوی بچوں سے ملاقات کے مناظر نے دیکھنے والوں کو ابدیدہ کر دیا۔ دیار غیر میں اپنوں سے دور بیماری کی آخری سٹیج پر موجود نصر اللہ خوش قسمت تھا جو اس کی آخری خواہش سنی گئی۔ اس کے بیوی بچوں نے اس کے ساتھ آخری لمحات گزارے۔ اس بات پر اس نے میڈیا اور پاک فوج پاکستانی کونسلیٹ کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ نصر اللہ کی وفات پر پاکستانی کمیونٹی انتہائی افسردہ ہے۔ کئی پاکستانیوں نے نصر اللہ کے بچوں کے لیے خیر سگالی کے جذبات اور مدد کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ والسل کی عائشہ مسجد میں آئی کیئر UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام شدید سردی سے بچنے کے لیے بے گھر افراد میں حفاظتی سامان اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ کاؤنسلر آف والسل مارکو لونگی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ عرفان احمد فراز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
वालसद की आयशा मस्जिद में आई केयर और यूके इस्लामी मिशन के ज़ेर एहतमाम बेघर अफराद में सर्दियों का सामान तकसीम करने की तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी काउंसलर ऑफ वेल्सर मार्को लोंगी थे। 92 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मार्को लोंगी ने कहा कि जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाना बड़ी ही खुशी की बात है और आयशा मस्जिद का ये इकदाम माशरे की इस्लाह के लिए काबिल कदर है। My name is Marco Longi. I am the Mayor of Walsall and I'm delighted to be here today at the Aisha Mosque here in Walsall because they are playing a very active role in Walsall's community together with iCare as a nationwide charity. उन्होंने मजीद कहा कि बेघर अफराद इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सर्दी की शिद्दत की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि उनकी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए अपनी सी कोशिश की जाए। आजकल होमलेस एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में और सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसलिए आई केयर जो यूके इस्लामिक मिशन का प्रोजेक्ट है उसके तहत हम विंटर किट्स इन होमलेस लोगों में तकसीम कर रहे हैं। आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर वॉल्सॉल में जो यहाँ बेघर लोग हैं और जो गुरबा हैं और फुकरा हैं उनके लिए ये विंटर सर्वाइवल किट्स जो है वो तकसीम करने का आज हमने अरेंज किया था। यूके इस्लामिक मिशन का वैसे तो खिदमत और वेलफेयर का पूरी दुनिया में नेटवर्क है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन यहाँ लोकल कम्युनिटी को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए आई केयर के नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पिछले कई साल से। फलाही तंजीम यूके इस्लामिक मिशन पूरी दुनिया में खिदमत खलक के लिए कोशा है और कम्युनिटी को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। अरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। दुनिया में तेजी से रूनुमा होती मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ बरतानिया में हज़ारों तलबा सड़कों पर निकल आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा ने क्लासेस का बायकॉट करते हुए लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर जमा हुए और नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन की तरह दीगर शहरों में भी तलबा की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर अपने दौरा यूरोप के दौरान स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंच गए हैं, जहां वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करेंगे। देखेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बार्सिलोना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राजा फारूक आज बार्सिलोना में मुनक्किद होने वाली यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब से खिताब करेंगे, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आमद मुतवक्की है। एयरपोर्ट पर राजा मुख्तार सोनी, नामदार इकबाल, अयाज अब्बासी और इम्तियाज आकिया समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के नुमाइंदा अफराद मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कश्मीरियों ने जो है जिस तरह से अपनी आज़ादी की जो शुरू की है, तो मुझे लगता है कि उसके नुक़्ते नज़र उसकी वजह से हो जाएगा। देखिए ना, अफ़गानिस्तान में भी अब अमेरिका तालिबान के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ बैठ कर बात कर रहा है कि जी हम यहाँ से जाएँ, इस इलाके में अमन आए कायम हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाले, कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर से निकाले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में जो पहले से एक तयशुदा मामला है कि लोगों को हक़ खुद इरादे दिया जाए तो उसको वो दे, ताकि मसला ख़त्म हो। और ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो 1.5 अरब लोग हैं, हम भूख का शिकार हैं, इफलास का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, तालीम की कमी है, रोज़गार के हमारे मसाइल हैं, बढ़ती हुई आबादी है। तो ये अल्लाह करे कि ये पैसा जो है फिर इस तरफ खर्च हो और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हलाकत की चीज़ें कायम करके पैदा बनाकर तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें, तो हम इस तरह क्यों ना मुकाबला करें। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना में कौंसलेट के अमले से मिलवाया गया और वहां काम के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म को वेलकम किया और दोनों के माबैन कश्मीर इशू और वहां इंसानी हुकूक की पामालियों से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। जबकि कश्मीरी रहनुमा राजा यूनुस की तरफ से शाम मकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लफ डिनर का एहतमाम था, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था और वो उसे नहीं किया। और फिर 1990 में 89-90 में कश्मीर के अंदर दूसरा जोश हुई। इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक, अगर कोई जाया काबिज़ कुव्वत आपको आपके जमहूरी हक से महरूम करती है तो आपको इख्तियार है कि आप उसके खिलाफ इख्तियार भी उठा सकते हैं।
ये इराक और जो अफगानिस्तान के अंदर वाक़यात हुए, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि इस चार्टर को तब्दील किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया और ये आज भी यूएन चार्टर का जो हिस्सा है। तो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो भी किया, उसके बाद फिर बंदूक को भी छोड़ा, फिर डायलॉग की बात की, लेकिन हिंदुस्तान के मुजालिम में कोई कमी नहीं आई। आखिर में कश्मीर की आज़ादी और आज़ादी की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआएं की गईं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि पुलवामा वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है। मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। मोदी का धमकी आमेज़ लहजा उनकी मुतवक्का शिकस्त और बदहवासी का नतीजा है। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाक़ा भी जो है ये भी इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इस मौके पर मैं हिंदुस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासी दहशत गर्दी में मसरूफ़ है। आज 8 लाख फ़ौज की मौजूदगी में अगर वो इतने बेबस हो चुके हैं, बाढ़ लगाने के बावजूद अगर उन्हें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है, तो ये मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की बहादुरी का और कुर्बानियों का एतराफ़ है और हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान को रवैया तब्दील करना होगा, फ़ौजों को वापस करना होगा, आबादी के मराकज़ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, कश्मीरी को शरीक करना होगा। एमनेस्टी की, इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट, हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट, OIC की करारदादें, इन पर तवज्जो देनी होगी और मकबूजा कश्मीर को आलमी बरादरी के लिए खोलना होगा। इस तरह आज मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है और श्रीनगर जो है वो एक हिंदुस्तान की फ़ौजी बस्ती और जेल की सूरत पेश कर रहा है और ये जो धमकी आमेज़ लहजा है ये नरेंद्र मोदी की बदहवासी का, शिकस्त का और आने वाले इंतखाबात में मुतवक्को नाकामी का और मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली नाकामी का इजहार है और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत, आलमी मकबूलियत और पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है वो उससे हज़म नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसे इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर उन्हें मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। पुर्तगाल में बरतानवी सफारत खाने की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को मुआशरे की तामीर में अपना मुस्बत रोल अदा करने के लिए आगाही फराहम करना था। ये रिपोर्ट देखिए। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में बरतानवी सफारतखाने की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मैट कुबान थे। उन्हें लंदन बोरो ऑफ हैकनी ऑफ स्टोक निविंगटन का कम उम्र तरीन काउंसलर मुंतखब होने का एजाज भी हासिल है। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि माशरे की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। शुरका ने भी तकरीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि इससे नौजवानों में शऊर पैदा होगा। तहरीक इंसाफ दुबई के सदर मोहम्मद शाहिद खान पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए बहुत सरगर्म हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी खदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट भी पेश किया। दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद से गुफ्तगू में उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में मेरा यकीन है, ख्याल नहीं यकीन है कि किसी भी बाशिंदे के लिए उसके मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अवार्ड मिलना और वो फिर एजुकेशन की खिदमात की वजह से और नवल के कंट्रीब्यूशन की वजह से आई टुक इट इज़ अ प्रायोरिटी। सरपरस्त अवार्ड है वो, तमाम जितनी मेरी ज़िंदगी में अवार्ड्स हैं सबसे बड़ा अवार्ड है और ये मेरे इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो मुझे एजुकेशन कास्ट के लिए और वहाँ पे जो 97% स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ रहे हैं, जिसके अलीमा खानम साहबा नमल जो है ब्रेडपर्ड की डिग्री दे रहे, 6 साल कंप्लीट हो गए उस यूनिवर्सिटी के, और जो एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन कैम्ब्रिज और एक्सपोर्ट की तरह एक सिटी बननी जा रही है नमल, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट सेंचुरियन। एंड अब मैंने वादा किया प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मैं सजदा शुक्र अदा करके इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में डबल सेंचुरियन के साथ मिलूंगा, डबल सेंचुरी के साथ मिलूंगा और इंशाल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ है कि सियासत अपनी जगह, तालीम सबके लिए, सेहत सबके लिए। मज़ीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। PSL के जादू ने सियासतदानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल कहते हैं PSL में ज़बरदस्त क्रिकेट देखने में मिल रही है। PTI दुबई के सदर मोहम्मद शाहिद खान ने उम्मीद का इजहार किया कि अगले टूर्नामेंट के ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में होंगे।
दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सर खुशनूद से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है जी, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज मैच देखा कि ये जो कराची और मुल्तान वाला था, और लग रहा था आधे मैच में कि ये बिल्कुल वन साइडेड है, लेकिन क्या फाइट बैक किया मुल्तान वालों ने, बड़ा मज़ा आया। और वैसे ये है कि इंशाल्लाह यकीनन अभी एक और मैच शुरू हुआ है, ये ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन सब मेरे ख्याल पाकिस्तान से जितने मैसेज आ रहे हैं, सब मेरी अम्मी का भी मैसेज आया, वो भी यही कह रही हैं कि सारे का सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करो यार, ये क्या दुबई में कर रहे हो जी। बहुत बेहतर चांसेस हैं अब इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि अब इस साल का तो प्लान बन गया जो है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है पूरा पाकिस्तान में होगा। मुझे तो कराची किंग वाले ज़्यादा पसंद इसलिए कि मैं कराची से पढ़ा हूँ, कराची से करियर स्टार्ट की, मेरी वालिदा की पैदाइश कराची की है, कराची से इधर ही आया हूँ, और फिर उसके बाद पेशावर, फिर लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है। और जिस तरह वलीद इकबाल साहब ने बताया, पूरे पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और वी वांट इंशाल्लाह द PSL मोस्ट मैचेस इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के पाकिस्तान में हो। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज सेफ भी बेटा है, ग्रेट ग्रैंड सन आप अल्लामा इकबाल साहब भी है, और वलीद इकबाल साहब हमारे सेनेटर साहब हमारे साथ हैं। तो इट्स ग्रेट ब्लेस्ड मोमेंट्स, वेरी काइंड ऑफ यू। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन पहले मैच में शिकस्त के बावजूद अपनी टीम के हक में पुरउम्मीद हैं। कहते हैं खिलाड़ियों ने आखिरी बॉल तक फाइट की, अगले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए फतह अपने नाम करेंगे। दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सर खुशनूद से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आप भी देखिए। एक टाइम तो लग रहा था कि शुरू में जब हम स्लो थोड़ा स्कोर कर रहे थे, लग रहा था मैच शायद ना जीत सके, लेकिन मलिक साहब आए, कैप्टन इनिंग खेली है, बेहतरीन मैच खेले, आखिरी बॉल तक गया मैच, हम बहुत खुश हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस था सारों का, हमाद आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और कराची वाले हमारे भाई हैं तो हम खुश हैं वो जीते। नहीं साहब, पंजाबियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, हम नहीं दबते। वो हमारा आइडिया था, हम चाह रहे थे हमारा मैस्कॉट ऐसे हुए कि जो लोकल बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा हुआ कि हर किसी को उसको देख के प्यार है, तो हमें लगता है कि सबसे हगेबल मैस्कॉट हमारा ही है। चिली के जनूबी जंगलात में भड़कने वाली आग ताहाल बेकाबू, 96,371 एकड़ रकबा जलकर आग का ढेर बन गया। शोलों की जद में आकर फायर फाइटर समेत 3 अफराद हलाक हो गए, ये रिपोर्ट देखिए। चिली के जनूबी जंगलात में 32 मुकामात पर आग लगी हुई है, जिसने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। भड़कते शोले हर शय को जलाकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 48 मकानात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में मौजूद सैकड़ों अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। हुकाम ने लिब्रांजा नासिमेंटो के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आग बुझाने के लिए 30 तैयारों और हेलीकॉप्टरों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तेज हवाएं और खुश्क मौसम हर कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। चिली में रवां सीजन में 4,400 मुकामात पर आग भड़की, जिसकी वजह से 1,16,695 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। सऊदी अरब में सजा बसंत मेला, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर दिया और रवायती खानों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत में रियाज काइट क्लब की जानिब से बसंत मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने पतंगबाजी करते हुए सहराए अरब के आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भर दिया। मनचले नौजवानों ने बसंत के रंग को दुबाला करने के लिए जहां एक दूसरे से पेचे लड़ाए, वहां पर भंगड़ा डालकर खूब हल्ला गुल्ला भी किया और बोकाटा के नारे भी लगाए। मेले में शरीक खातीन ने भी पतंगबाजी की और इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इतना सारे लोग हैं, बहुत आवाम है माशाल्लाह से। हमने पतंग उड़ाई भी ली, लेकिन हमसे उड़ी नहीं, हट गई हमारी। शुरका का कहना था, इस तरह के इवेंट से जहां तफरीह का मौका मुयस्सर आता है, वहां पर दयारे गैर में अपने मुल्क की सकाफत के रंग देखने का मौका भी मिलता है। जब तक गुड्डी उड़ाएं, जब तक हाथ कटे ना, मजा नहीं आता। हम लोगों ने बहुत अच्छी पसंद बनाई है इधर, और बहुत इंजॉय किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान में भी शुरू किया जाए और हर सिटी में शुरू किया जाए, ना कि पंजाब में सिर्फ जो पाबंदी लगी हुई है उसको भी हटाया जाए। मेले के ऑर्गेनाइजर हाजी अदीब और अलियास भट्ट ने इवेंट की इजाजत देने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।